Hey guys, welcome back to my channel in another video of Clinical Dentistry Hub. My name is Dr. Shabista Jabi and you are watching Clinical Dentistry Hub. So I am back again with a yet important and very important topic which you all might be knowing. So if you are new to my channel, please click subscribe and click the bell icon so that you don't miss out any important video of my channel. So today I'm going to discuss about the recent news that has been there in all over social medias. Whatever you go and scroll about, you will find a news saying that the right has been given to the MS Ayurveda people to perform surgeries. Yes, this is the topic of discussion today. We are going to discuss about what are the rules, what are the amendments says about it, what the Indian Medical Council has to say about it, why the formulation of regulation has been like this. All this will be discussed in this video today. So if you are new to my channel, please click subscribe. My name is Dr. Shabista Jabi and you are watching Clinical Dentistry Hub. Yes, my dear friend, you heard it correct. The Indian Medical Central Council registration has given the right to the postgraduate student of Ayurveda to perform surgeries. Yes, it's the right news. That means that person who is pursuing post graduation in Ayurveda, अब वो लोग सर्जरी कर सकते हैं. आयुर्वेदा में भी कौन से लोग सर्जरी कर सकते हैं? वो लोग दैट बिलोंग्स टू दी शल्य कैटेगरी, दैट इज द शल्य सब्जेक्ट, दैट इज द जनरल सर्जरी, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ शालक्य, दैट इज दी विच कवर्स होल ऑफ योर ENT, throat and all your orodental related problem. Head surgeries will be covered under Shalakya. So the people pursuing their post graduation in Shalya and Shalakya, they are given the right to perform the surgeries after they independently, after they graduate, after they did their post graduation, they'll be able to do their surgery independently in their clinic. They will be given all of these 2 years, they will be given the training of all these things to be done in their so that they can go out and perform these surgeries. So क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक करेक्ट डिसीजन है कि हम ऐसे प्रोसीजर्स एक MS आयुर्वेदा के पीपल पे हम उनको एग्री कर रहे हैं कि वो ये प्रोसीजर्स आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं? Being a dental surgeon, I would like to say that MS Ayurveda people, they are allowed to perform dentistry, which include loose teeth extraction, root canal therapy. So that means हम जब BDS करते हैं तो वो हमें करने के लिए 4+1 ईयर लगता है, तब हम डेंटल सर्जन कहलाते हैं. उसके बाद जो लोग रूट कैनाल करते हैं वो बिलोंग करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स. मतलब वो लोग को 3 साल और लगता है ये रूट कैनाल स्पेशलिस्ट बनने के लिए. तो टोटल हो गया 8 साल, तब जाके आप ये प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली कर पाते हैं. मीनवाइल अगर यही काम कोई एक MS आयुर्वेदा का पर्सन करता है तो वो सिर्फ 3 साल में उसे ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. दांत निकालना है तो ब्लॉक देना आना पड़ेगा, दांत निकालने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, पूरा एनाटॉमी जानना पड़ेगा, फेशियल नर्व्स वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद अगर आप वहाँ फिर उसके बाद रूट कैनाल कर रहे हैं तो रूट कैनाल के लिए आपको दांत का एनाटॉमी, उसमें कोई भी रेस्टोरेशन कर रहे हैं टूथ में तो सारे रेस्टोरेशन मटेरियल के बारे में डेंटल मटेरियल आ गया, वो भी पढ़ना पड़ेगा. और रूट कैनाल करने के बाद जब हम उसमें क्राउन देते हैं तो प्रोस्टोडोंटिक्स भी आ गया. तो मतलब ये सारे सब्जेक्ट जो हम 8 साल पढ़ के स्पेशलिस्ट बन रहे हैं रूट कैनाल की, आप लोग वही काम 3 साल में करेंगे. मार्केट में यार वैसे ही जॉब्स नहीं है डेंटल सर्जन के लिए. अभी भी बहुत से लोग बिना जॉब्स के डेंटिस्ट्री शिफ्ट करके MPH वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं ताकि उन्हें एक सिक्योर जॉब मिल जाए. ऊपर से आप एक ऐसा रेगुलेशन ले आते हो कि आप और लोगों को भी राइट दे रहे हो कि वो भी ये डेंटल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं. क्या ये जस्टिफाइबल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं. क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में डेंटिस्ट्री के लिए जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है
ओरल हेल्थ अवेयरनेस ऑलरेडी पीपल में कम है। ऑलरेडी 300 कॉलेजेस इंडिया में हैं जो हर साल ग्रेजुएट्स पास आउट होके वहाँ से निकलते हैं। इतने सारा डेंटिस्ट होने के बाद आप वो लोग भी अगर डेंटिस्ट्री करने लगेंगे, ऑलरेडी इधर इतना कंपटीशन है और ये लोग भी आ गए तो कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। कोई डेंटिस्ट्री तो फिर स्पेशलिटी ही नहीं रहेगी। अभी सब लोग कर पाएंगे तो डेंटिस्ट्री एक स्पेशलिटी रह ही नहीं जाएगी। इसके लिए इंडियन एंडोडोंटिक सोसाइटी ने एक लेटर लिखा था जो कि ये था, जिसमें इन्होंने कहा कि 5 इयर्स लगते हैं हमें डेंटल सर्जन बनने के लिए, प्लस 3 इयर्स लगते हैं हमें रूट कैनाल स्पेशलिस्ट बनने के लिए, तब जाके हम एक अच्छा रूट कैनाल कर पाते हैं। तो कैसे कोई एक MS आयुर्वेदा का पीपल आके रूट कैनाल और रूट टूथ एक्सट्रैक्शन कर जाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से आते हैं ये लोग जो 2 महीने में हेड सर्जरी भी पढ़ लेंगे, ENT सर्जरी भी पढ़ लेंगे, ऊपर से आपका थ्रॉट सर्जरी भी पढ़ ले रहे हैं, बाकी आपका जनरल सर्जरी भी देख ले रहे हैं। टोटल 58 सर्जरी वो लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इसमें 19 माइनर सर्जरीज हैं वो भी वो लोग कर लेंगे। डेंटिस्ट्री भी कर रहे हैं, RCT भी कर रहे हैं, ये सब पढ़ लेंगे वो 2 साल में। और कंपेयर करेंगे कि वो डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। इसको क्या नाम दिया गया है? इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिलिंग पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा एडुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। तो जब आयुर्वेदा पीपल से ये पूछा गया कि आखिर ऐसा रूल एंड रेगुलेशन क्यों निकाला गया, तो दे जस्टिफाई दैट from past years these surgeries they are being performed by these Ayurvedic people illegally. So to clarify that what all surgeries can these Ayurvedic people can do after being passed out as a postgraduate, so just as to clarify that they have made this amendment so that it is to be publicly issued. उनका कहना है कि आयुर्वेदा के लोग सर्जरी तो बहुत समय से कर रहे थे जो कि एक इलीगल था, तो उन्होंने ये अमेंडमेंट निकालना पड़ा ताकि एक जस्टिफाइबल स्टेटमेंट हो कि वो कौन कौन सी सर्जरीज कर सकते हैं। कम ऑन, होल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन दे आर ऑल अगेंस्ट दिस। ऑब्वियसली दे विल बी, because if similar right from one profession is provided to the other people, how would it make a difference over it? डिग्री चेंज करनी पड़ेगी फिर तो। allow the Ayurvedic people to pursue MBBS, then they will pursue MD, they'll pursue MDS, they'll do super speciality. It is as simple as that. Plus you include all of that small of Ayurveda portion in it. Will it be justifiable? I guess not at all. Every branch needs its priority. The one and the only thing is that every branch needs its priority. 8 साल घिसने के बाद अच्छे से एक्सपर्ट होकर दांत निकालना, रूट कैनाल करना, रेस्टोरेशन करना सीख पाते हैं, उसके बाद भी एक ऐसा रूल आएगा जो कहेगा कि और भी लोग हैं जो ये काम करेंगे। अरे पहले से ही 300 कॉलेजेस इतने लोगों को पास आउट करके भेज रहा है, जॉब्स मार्केट में है ही नहीं, ऊपर से ये लोग भी आ जाएंगे, क्या होगा डेंटिस्ट्री का? स्पेशलिटी तो बचेगी ही नहीं। जो हम कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा। तो एक बहुत ही अर्जेंट नीड है कि इस अमेंडमेंट रेगुलेशन को फिर से नज़र दी जाए, इसे फिर से पढ़ा जाए कि आखिर ऐसा रूल क्यों बनाया गया, इसमें क्या क्या उनको करेक्शंस करने हैं, वो ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, फिर आपका MBBS कोर्स, ये लोग का अहमियत नहीं रह जाएगा, आ जाएंगे MS आयुर्वेदा। फिर मेरे को लगता है ये सबको मिला के एक ही कोर्स बना देना चाहिए MS आयुर्वेदा। वो सबको सब चीज़ सिखानी चाहिए, जिसको जो मन में आए वो करे। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर ह्यूमन, वी कैन नॉट लर्न सो मैनी थिंग इन जस्ट अ स्मॉल 2 years कोर्स।
So I request the fraternity to look into the matter and kindly do whatever changes is being suitable for the upcoming generation in the field of dentistry and in the field of medicine. So if you have liked this video, please click like and do share it so that much and much of people will be aware about it. And if you have any problem, if you want to share your views on it, you can just put it down in the comment section. And yes, of course, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. I'm signing it off. Bye.